خصوصی پروگرام مباحثہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید باقر۔ آج کے اس پروگرام میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ میں SIR کا عمل 25 جون سے شروع ہوا، 24 جولائی تک یہ جاری رہے گا۔ اسی پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اور اس کے خد و خال پر نظر ڈالنے والے ہیں، کس طرح سے یہ عمل شروع ہوا اور اس میں ابھی تک یعنی 25 جون سے آج 28 جون ہے، تو یہاں تک یعنی ان 3 دنوں میں کس طرح سے فارمز کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے، BLOs کا کیا کردار ہے، BLAs کا کیا رول ہے، اور پھر لوگوں کی جانب سے کس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور کیا کنفیوژن ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کچھ کہا گیا وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آگے کے حوالے سے کیا حکمت عملیہ ہیں اور کس طرح کا اسٹرکچر ہے، کس طرح سے یعنی فارمز حاصل کرنا ہے اور پھر اس کی خانہ پوری کرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے، اور پھر کس طرح سے BLOs کو پھر دوبارہ ان کے حوالے کرنا ہے، اور پھر یہ عمل کس طرح سے مرحلہ وار آگے بڑھے گا، اور ڈرافٹ کس طرح سے سامنے آئے گا، ڈرافٹ کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، ڈرافٹ سے پہلے کیا کرنا ہے، حتمی ڈرافٹ کیا ہے، اور پھر اس میں یعنی انامولیز کیا ہے اور اٹھنے والے سوالات کیا ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، کوشش یہ کریں گے کہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات کو ہم حاصل کریں اور اس پر روشنی ڈالیں، کنفیوژنس کو دور کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مکمل جو عمل ہے یہ اس پہ خود جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، لیکن بہرحال حکومت نے کئی ریاستوں میں کروا دیا، اب دیگر ریاستوں میں بھی یہ ہو رہا ہے، تلنگانہ میں چل رہا ہے، اور بڑا حساس قسم کا معاملہ ہے، توجہ سبھی کی درکار ہے۔ غفلت اگر برتیں گے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شہریت کا معاملہ ہے۔ شاید یہی وہ خوف تھا کہ ایک بے قصور کی مبینہ طور پر خودکشی ہو گئی، اسی معاملے کو لے کر ابھی ابتدائی جو اطلاعات ہیں اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ شہر حیدرآباد کے بورا بنڈا علاقے میں ایک شخص نے مبینہ طور پر، ابھی ابتدائی طور پر جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں، مزید توثیق تصدیق باقی ہے، کہ ایک پیشے سے کار ڈرائیور جنہوں نے اپنی خودکشی کر لی ہے۔ تصویر میں چاہوں گا کہ اگر پینل کے پاس ہے تو وہ ضرور ڈالیں۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ حیدرآباد کے بورا بنڈا میں ایک شخص نے مبینہ طور پر SIR ووٹر لسٹ میں نام کے خارج کر دیے جانے کے خوف کے نتیجے اپنی خودکشی کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بورا بنڈا کے رہنے والے شیخ مجیب اپنے دستاویزات کے تصحیح کو لے کر کافی الجھن سے دوچار تھے، کافی مشقت کے باوجود اپنے دستاویزات کو وہ درست نہیں کر پائے۔ اسی خوف کے عالم میں انہوں نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس نے کہا جا رہا ہے کہ ضمن میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ کافی الجھن سے دوچار تھے۔ جیسے ہی یہ SIR کے حوالے سے جو بات سامنے آئی تو وہ اس کو لے کر کافی فکر مند تھے۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب اس حوالے سے مزید تحقیقات ہوں گی تو بات سامنے آئے گی۔ اسی دوران میں آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے، میں چاہوں گا پینل سے تصاویر بتائیں، اور اگر آپ یعنی بیرسٹر اویسی کا جو بیان ہے اس کو اگر آپ سنا بھی دیں تو بڑی نوازش پینل سے میں کہہ رہا ہوں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عوام کے لیے ایک ترغیبی بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ان کی قیامگاہ پر BLO سے انہوں نے SIR کے لیے انومریشن فارمز حاصل کیے اور خود کا اور دیگر گھر والوں کا جو فارمز ہے اس کی خانہ پوری کی۔ انہوں نے سبھی سے اپیل کی کہ وہ اس SIR کے عمل میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے آپ تمام حضرات کو ایک بات کی اطلاع دے رہا ہوں کہ میرے گھر میں آج SIR کا انومریشن فارم کے سلسلے میں BLO اور الیکشن کمیشن کے ذمہ دار آئے تھے، اور میرے گھر میں میرا انومریشن فارم مکمل کر کے میں نے دیا ہے، ہماری وائف کا انومریشن فارم ہم نے مکمل کر کے دیا ہے، میری تینوں بیٹیوں کا مجھ سے ان کی میپنگ کروا کر دیا گیا ہے، اور میری ایک بیٹی جو اس سال ووٹ ڈالنے کے اہل ہے ان کے لیے فارم 6 ہم نے داخل کیا ہے، اور ہمارے داماد کا ان کا فارم 8 ہم نے دیا ہے ایڈریس چینج کے سلسلے میں۔
तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग इन्यूमरेशन फॉर्म को सही तरीके से फिल करिए। ज़रा थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम दरकार लगता है, सब्र से काम लीजिए। और जो हजरात जो नौजवान लड़के लड़कियां जो इस साल वोट डालने के लिए अहल हैं, यानी वो 18 ईयर्स के हो रहे हैं अक्टूबर में, तो उनको फॉर्म 6 दाखिल करना पड़ेगा। अपने एक डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म 6 दाखिल करके उसके एक्नॉलेजमेंट रिसीट हासिल करना है। और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है मगर उनका एड्रेस चेंज है, तो उनको फॉर्म 8 दाखिल करके वो फॉर्म फ़ोटो लगा कर देकर उसका भी आप एक्नॉलेजमेंट आपको देंगे BLO की तरफ से। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर तवज्जो लीजिए, यह अहम काम है। याद रखिए कि SIR के फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो खुदा ना खास्ता कल आपकी शहरियत पर भी सवाल निशान उठेगा। तो ये तमाम से मेरी अपील है कि जब BLO आएगा उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ अपने घर में किसी हिस्से में बिठाइए और सब्र के साथ सही तरीके से अपने फॉर्म को फिल करके फ़ोटो लगाकर वापस दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर अलीगढ़ प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सियासी तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि यकीनन SIR के हवाले से हम आज बात कर रहे थे और इसी हवाले से आज ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, लेकिन इसी दरमियान यानी इस प्रोग्राम के आगाज़ से क़ब्ल जिस तरह की खबर जो हैदराबाद के बोराबंडा इलाके से मिली, मैं चाहूँगा कि हम उसी से आगाज़ करें। बड़ी तकलीफ़ की बात है अगर वाकई SIR के खौफ के नतीजे में एक शख्स की जान चली गई है। अगर ये वाक़या या ये वजह यही है तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि क्या लोग इतने खौफज़दा हैं इस अमल को लेकर? जी, ये यकीनन इंतहाई अफसोसनाक बात है कि तेलंगाना में SIR की मशक़ का आगाज़ 4 दिन पहले हुआ है, 25 जून जी। और आप देख रहे हैं कि चौथे दिन एक शख्स जो है ना अपने जो है सो मौत को गले लगा लिया है और उसकी वजह जैसा बताई जा रही है कि SIR का खौफ है। हम बार बार इससे पहले भी गुफ्तगू में बात करे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस किस्म का माहौल पैदा कर दिया गया है, इसके नतीजे में नाखवानदा अफराद, गरीब अफराद के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। आप जानते हैं कि उनके भतीजे ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि कागजात की तैयारी के लिए वो शख्स जो ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, और आप जानते हैं कि उसकी कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं होती है, 1.5 लाख रुपये उसने खर्च किए हैं कागजात बनाने के लिए, चाहे वो आपका वोटर ID कार्ड हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो। चाहे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उसने कहा है कि 35,000 रुपये मुहैया तौर पर दिए गए हैं। तब आप देखिए कि सबसे अहम पहलू जो निकल कर आ रहा वो ये है कि SIR के नाम पर रिश्वत का बाज़ार गर्म हो गया है और गरीब लोग जो है बेचारे परेशान होकर जो है ना वो पैसे भी डाल रहे हैं। उसके बाद हालात ऐसे हो गए जैसा कि कहा गया कि भाई कई चक्कर लगाया दफातर के, हर पेपर उसका रिजेक्ट कर दिया गया और वो मायूस होकर जो है ख़ुदकुशी कर लिया। तो अब इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि जो वाज़े हिदायत आनी चाहिए थी, जिस किस्म की हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शऊर बेदारी की मुहिम चलनी चाहिए थी कम से कम 1 साल तक, उसके बाद अगर इस अमल का आगाज़ किया जाता तो मैं समझता हूँ कि ये खौफ का माहौल नहीं पैदा होता था। अब आप बताइए कि एक नाकर्दा गुनाह इंसान उस जो है अपनी जान खो बैठा है और फिर उसके जो बेटे हैं वो जहनी तौर पर माजूर है, वो परेशान था अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से, अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से। तो लाजमी चीज़ है कि कोई अगर उसकी वक्त पर सही रहनुमाई कर देता या उसको बताता कि भाई इतनी ज़्यादा खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बताया जा रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट उसके पास थे मौजूद, लेकिन जो लोग कंसर्न थे उन्होंने उसको कबूल नहीं किया उसको। तो इस पर हम तो कहेंगे कि भाई तहकीकात होनी चाहिए बाज़ाब्ता तौर पर और देखना चाहिए कि भाई आखिर क्या वजह थी कि उस शख्स ने इतना इंतहाई इक़दाम कर लिया है। अब एक सवाल यह है कि 4 दिन के अंदर एक वाक़या अगर हुआ है इस किस्म का दर्दनाक वाक़या, तो अब 1 महीने में कितने वाक़यात होंगे आप गौर कर लीजिए। एक महीने के अंदर थोड़ा सा जो उनके रिश्तेदार हैं वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि नाजरीन उसको सुन लें। बड़ी तकलीफ और दर्द की बात है, इस हवाले से हम बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा, ये हैदराबाद के बोराबंडे का इलाका है और जहाँ पर शेख मुजीब जो पेशे से यानी कार ड्राइवर बताए जा रहे हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर इसी SIR के खौफ के नतीजे में उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। मैं चाहूँगा कि पैनल से प्लीज़ बाइट सुनाएं और बताएं कि वो क्या कह रहे हैं। जी
रात को आए खाना खा ले, खाना खाओगे तो खाना नहीं खा रहे, चाहे 1 महीने भर से खाना नहीं, कुछ भी नहीं, खाली टेंशन, टिफिन ले रहे घर को ला रहे, टिफिन लेके जा रहे घर को ला रहे। मैं बोली कहेगा तो भी टेंशन है, ऐसा क्या सोच रहे, नहीं वहाँ बांग्लादेश भेजते, मेरे 2 बच्चे ऐसे हैं, मेरे को ऐसा भेजते, मेरे को फलान होता, खाली पेपरा के खातिर और कुछ भी नहीं था। उनकी कार चलाते थे नहीं सर, पेपर का बहुत उनको टेंशन था, मेरे फुरपा सही नहीं है, मेरे बच्चा का क्या होता, मेरा क्या होता, मैं कहाँ जाता, उनको बच्चों का भी जाते बोल के ये टेंशन लेते, फलाने का जिरास होना, खाली वो फोनों में देखना, इसमें देखना, वो देखना, ये पेपर बनाना, वो पेपर बनाना, बैताज के बच्चा के तारीखा नहीं है, वो तारीखा बनाना, पासपोर्ट में मेरे बच्चा का नाम शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, शेख मुजीब है, और इसमें आधार कार्ड में शेख मुजीब है, शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, बल्कि ये बहुत टेंशन लेते थे, मेरे बच्चा का कैसा होता कि बच्चा, मेरे बच्चे 2 ऐसे हैं, एक बच्चा है तो वैसा, एक होशियार है तो ये 2 बच्चे ऐसे, बोल के ये टेंशन लेते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े अफसोस की बात है डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल देखें, मतलब करेक्शन करवाने के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमको जो है मद्देनज़र रखना होगा डॉक्टर साहब कि एक मामूली यानी करेक्शन के लिए जो दफातर को लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो नौकरशाही का मुजाहरा होता है और वहाँ पर जो मुश्किलात का सामना होता है लोगों को, जबकि वो चाहें तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। हम यानी चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वाइब्रेंट भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे दफातर में छोटे छोटे काम डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से होते हैं, महीनों लग जाते हैं और वो काम, और इतना उसको जो है इरिटेट कर दिया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, और उसको कितनी भी जरूरत हो, वो उसके जो है मुस्तकबिल उस पर यानी उससे जुड़ा हुआ हो, लेकिन कोई टस से मस नहीं मामला होता, और एक ऐसा प्रोसीजर बनाकर रखा गया है कि ये ऑफिसर दूसरे ऑफिसर पर डालेगा, दूसरा ऑफिसर तीसरे पर डालेगा, ये डिपार्टमेंट कोई और डिपार्टमेंट पर जो है बात रखेगा, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं होगा। ये सूरत हाल हमारे जो है मुल्क में हम देखते हैं, कोई भी रियासत इससे जो है यानी परे नहीं है। जी डॉक्टर साहब, देखिए यही तो बात हम कह रहे थे कि शुरू दिन से कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के नाम पर लोग परेशान करेंगे और इसके अंदर सरकारी ओहदेदार बहरहाल अपनी चाहनी करेंगे। अब आप देख रहे कि पैसा तो उन्होंने कमा लिया, लेकिन एक इंसान की जान भी चली गई, कम से कम उसके 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो कम से कम कागजात तो ठीक हो जाना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है, हम तो अखबारात में टीवी पे दीगर रियासतों का पढ़ रहे थे, आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में भी 100 से ज़ायद लोगों ने खुदकुशी कर ली है एसआईआर के अमल के दौरान में, आसाम के अंदर भी हुई है और दीगर मुकामात पर भी हुई है, लेकिन हमारे अपने शहर के अंदर ये पहला वाक़या है। अब आप देखेंगे अभी 24 जुलाई तक जो है ना एसआईआर का ये मुहिम चलने वाली है और राय शुमारे जो है ना घर घर पहुँचेंगे और किस तरीके से आप देखेंगे कि वोटर्स को परेशान किया जाएगा, और नहीं मालूम खुदा न खास्ता ना हो, लेकिन नहीं मालूम कि और भी कितने लोगों की बात हो जाएंगी इस मामले के अंदर। तो इसके अंदर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो बहुत ही वजाहत के साथ सारी चीज़ों को रखे, और जैसा कि जहां तक नामों की तस्दीक का मामला है, पते की तस्दीक का मामला, ये जो है ना किसी शहरी का नहीं होता है, ये सरकारी ओहदेदार गलती कर देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि 2002 की लिस्ट के अंदर बहुत से लोगों के नाम जो है ना गलत आ गए, बल्कि यानी मज़े का खेज बात यह है कि एक शख्स का नाम मुसलमान है, उसके वालिद का नाम गैर मुस्लिम है। अब ये कैसे हो सकता बोलिए आप, कौन मुसलमान वोटर जो है अपने बाप का नाम गैर मुस्लिम लिखाता है, तो लाजमी चाहिए कि बीएलओ का काम हुआ है। और अभी भी आप जानते हैं कि गुज़िश्ता जो प्री मैपिंग हुई है उस वक्त सोशल मीडिया में आपने देखा कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, बल्दिया के खाकरूब हैं, ऐसे लोगों को बीएलओ बनाया गया और आज फिर उन्हीं को बनाया जा रहा है। अभी भी जो रिपोर्ट आए हैं 25 जून से जो अमल शुरू हुआ है, उन्हीं लोगों को फिर वो जिम्मेदारी दी गई है, तो अब कैसे ये काम हो सकेगा। तो दूसरा अहम सवाल ये है कि सब एक गरीब इंसान जो रोटी रोजी कमाता है, वो जो है ना अगर लाखों रुपए सिर्फ कागजात को बनाने के लिए खर्च करने की बात आ जाएगी तो कैसे मुकम्मल कर सकेगा। इस पर जो है ना हुकूमत को गौर करना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि ये हादसा एक वार्निंग है इलेक्शन कमीशन के लिए और यहाँ के रियासती इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो कम से कम अब होश के नाखुन ले और आवाम को परेशान करना छोड़ दे। अगर छोटी मोटी गलतियाँ हैं तो नज़रअंदाज किया जाए। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि 88 लाख लोगों के नाम आपने इनाम लिस्ट के नाम पर निकाल दिए और कहा गया कि फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में उस वक्त शाये लाया जाएगा जबकि वो अपना कोई सबूत पेश करेंगे। अब आप बताइए, जिस रियासत के आप यानी जो वोटर्स हैं हमारे पास, वो 3 करोड़ आपके 40 लाख के करीब है। अब इन 3 करोड़ 40 लाख में से अगर आप 88 लाख लोगों को
डाउटफुल सिटीजन बना देते हैं जी। और ये कहते हैं कि साहब आपके नाम के अंदर एक स्पेलिंग की मिस्टेक आ गई है, फला की चीज़ आ गई है, आपके बच्चे जो है छः बच्चे हैं या उनसे ज़्यादा है, लिहाजा उसका प्रूफ दीजिए। तो ये कैसी सूरत हाल है। और फिर आप देखते हैं कि 1 महीने के अंदर आप ये अमल पूरा मुकम्मल करना चाहते हैं और अभी भी शिकायत लोगों की आ रही। खुद मेरा मामला है कि अभी तक BLO मेरे पास नहीं आया है, जबकि आप जानते हैं कि मेरे मकान से बिल्कुल करीब में आपका जो है ना कमिश्नर आपके जो बल्दिया के ऑफिस है, बाज़ार दफ्तर मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई BLO नहीं आया वहाँ पर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये समझते हैं कि ये आवाम को गैर ज़रूरी के परेशान किया जा रहा है। अब आपने 3 दिन पहले देखा है कि आपके जो है सो आपके फॉरेन अफेयर्स की तरफ से यानी आपका उमूर खारजा, उन्होंने क्या कह दिया कि भाई पासपोर्ट भी जो है ना आपका शहरियत का सबूत नहीं है। अब आप बताइए कैसे मजाक हो रहा है। आप एक तरफ जो है ना पासपोर्ट को भी कहते हैं कि साहब ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, दूसरी तरफ आपने कहा कि आधार कार्ड को भी हम कबूल नहीं करते हैं, तीसरी तरफ आपने कहा कि भाई पैन कार्ड भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हत्ता कि आपने खुद इलेक्शन कमीशन का जारी करदा आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी आपने मुस्तरद कर दिया है। तो आखिर क्या चीज पेश करेगा शहरी, आप बताइए मुझे, किस चीज का आप सबूत चाहेंगे उसकी शहरियत के लिए। जबकि दस्तूर ये कहता है हमारा कि कोई शख्स जो हिंदुस्तान में पैदा हो गया है वो हिंदुस्तान का शहरी है और 18 साल जिसकी उम्र हो गई है वोट डालने का हकदार हो जाता है। लेकिन आपने पिछले दरवाजे से दस्तूर में तरमीम की 2000 आप जानते हैं कि 3 में, और आपने अमेंडमेंट किया और आपने कहा कि नहीं साहब जो शहरी आपके जो 1987 के पैदा हुए 1 जुलाई 1987 से, तो उनके लिए आपने पैमाना रख दिया, कहा कि नहीं वो अपना भी प्रूफ दे, अपने वालिद का भी प्रूफ दे। फिर उसके अंदर आपने ये भी लिख दिया बाद में जाकर कि जो शहरी जो है ना आपके 2002 के बाद पैदा 4 के बाद पैदा हुए उनको जो है अपने वालिदैन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये बातें तो उसी वक्त आनी चाहिए थी जब आपने दस्तूर में तरमीम की थी जी, लेकिन उसको छुपा कर रख दिया गया बाज़ाब्ता। और अब जबकि आपने इलेक्शन का मरहला आ गया तो आपने फौरी इसको जल्दबाजी में शुरू किया। अब आप देखिए कि बिहार की जो सूरत हाल हुई 1 महीने के अंदर आपने बहुत ही उजलत पसंद से काम किया, नतीजा क्या हुआ, हकीकी कई वोटर्स के नाम निकल गए वहां पर। वेस्ट बंगाल की यही सूरत हाल हुई है। तो अब आप बताइए कि लोग अपनी जाने दे रहे हैं, इसके बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं होती है। तो इससे बढ़कर हम समझते हैं कि क्या यानी कहेंगे आप इसको कि इनका जो है ना मिजाज क्या बन चुका है कि लोगों की जानों की भी उनको कोई परवाह नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बड़े अफसोस का मामला यही है कि अब जो है ये इस तरह के वाक़यात जब सामने आएंगे तो कुछ डिपार्टमेंट में सख्तियाँ की जाएंगी वगैरह वगैरह, लेकिन क्या वजह है कि छोटे छोटे मामला हमारे पास बड़े मतलब लेंथी होते हैं और कुछ दस्तावेज़ात तो ऐसे हैं जिसमें अगर कोई चीज़ एक बार आ जाए तो फिर आप भूल जाएं, फिर उसमें जो है किसी तरह की यानी कि कोई करेक्शन हो, मतलब जिंदगियां गुजर जाती है। ऐसे कई सारे दस्तावेजात हैं, जिस तरह से पासपोर्ट भी उसी में शामिल है। बिल्कुल, कोई चीज़ एक बार आ जाए तो फिर उसमें कुछ चीज़ें हैं तब्दील हो सकती हैं, लेकिन उससे हटके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोगों की जो है मामलात यानी उस पर डिपेंड रहे, लेकिन उसमें कोई करेक्शन नहीं हुआ जबकि जेन्युइन करेक्शन था। बिल्कुल, ये चीज़ें हल होने की ज़रूरत है। अब देखिए आप, हुकूमत कई डॉक्यूमेंट्स को रख दे रही है जी। आपने देखा कि जब आधार का मामला शुरू हुआ इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतना पैनल से चाहूंगा अंदर कुछ केबल कुछ कनेक्शन लूज हो रहा है, देखें टीवी का। जी डॉक्टर साहब, देखिए आधार का जब मामला आया आपने देखा कि साहब ये ऐलान किया गया कि साहब हर शहरी के पास आधार कार्ड होना जरूरी है जी, और वही सबूत रहेगा आपके लिए। आप बैंक का अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, बच्चों को एडमिशन नहीं दिला सकेंगे आधार कार्ड के बगैर, आप हॉस्पिटल में शरीक नहीं हो सकेंगे, हत्ता कि आप हुकूमत की कोई स्कीमों से फायदा नहीं हासिल करेंगे। अब जब आधार कार्ड बन गया और आप देखते हैं कि कोई शख्स ने एसएससी पास किया है, अब एसएससी के सर्टिफिकेट में थोड़ा सा अगर नाम में आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ के अगर फर्क आ गया है तो अब उसको आप ये कहते हैं कि नहीं साहब हम दोनों को मुस्तरद कर देते हैं, हम नहीं मानते हैं। तो अब आप बताइए इतने डॉक्यूमेंट्स एक शहरी से तलब करना, ये खुद इस बात का सबूत है कि आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं। भाई कोई एक डॉक्यूमेंट तो रखिए आप अपने पास, ठीक है भाई आप एसएससी का सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है, उसको एक को तो मानिए आप, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हैं कि साहब ने बर्थ सर्टिफिकेट में वही डेट होना चाहिए, आधार कार्ड में वही डेट होना चाहिए, पासपोर्ट में वही डेट होना चाहिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत से लोग अपने बच्चों को इब्तिदाई उम्र में स्कूल में शरीक कराते हैं। अब वालिदैन नहीं रहते, बाज़ मरतबा रिश्तेदार रहते, कोई एक डेट उसकी लिखा दी जाती है उनकी। अब उसके बाद जो है ना बच्चा जो है आधार कार्ड बनाते वालिदैन, उसमें कोई डेट अलग आ जाती है। अब आप उसको एक मसला बना देते हैं।
अरे भैया आपको ये देखना चाहिए कि ये शहरी है, उसका वालिद यहाँ पर रहा है, उसके बाप दादा यहाँ पर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं दिखती, आप सिर्फ कागज़ पर अमल करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एक शख्स दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर नाम का करेक्शन है, अगर कोई साहब मलकपेट में है, अब उनको कहा जा रहा है कि नहीं आप याकुतपुरा जाइए, वहां पर आपका नाम है, कोई याकुतपुरा जा रहा है तो कह रहे कि नहीं आप चारमीनार एरिया में जाइए। तो हुकूमत तो एक ही है ना भाई, एक ही लिस्ट है, आप कहीं से भी करेक्शन कर सकते हैं। आज का जमाना तो डिजिटलाइज हो चुका है जी हाँ। आपको जो है ना इतनी आसानी हासिल है कि आप आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा है कि अगर आप एक दरख्वास्त देते हैं किसी करेक्शन के लिए तो महीनों लग जा रहे हैं, उसके अंदर लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ता है। और फिर ऑफिसरों का दिमाग इतना ये हो गया है कि वो लोग जो है ना उस चीज़ को देखना ही नहीं चाहते जी। एक मरतबा अगर हुई कोई चीज़ तो फिर उसके जैसे उसके लिए 25 किस्म के आप दावे पेश करना पड़ता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि ये दरअसल शहरियों को एक परेशान करने का एक हरबा बन गया है सैयार। और आज के हादसे के बाद तो हम ये समझ रहे हैं कि यकीनन बहुत से लोग इस वक्त परेशान हैं। अब लाजमी चीज़ है कि हर शख्स वो इंतहाई इक़दाम नहीं करता है और नहीं करना भी चाहिए। मैं हमारे नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि भाई SIR का मामला इतना खतरनाक नहीं है कि आप अपनी जान दे दे इसके लिए, हाँ अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। मैं कहना चाह रहा हूँ जो लोग परेशान हाल है कि आप उसमें घबराइए मत, परेशान मत होइए, और जो कुछ भी आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर आप कोशिश कीजिए। और अगर नहीं हल होता है तो आपके पास बहुत से अल्टरनेट मौजूद है, बहुत सी जमातें काम कर रही है, बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, उनसे आप अप्रोच हुई। अब बाज लोग बहुत ही जज्बाती होते हैं, परेशान हो जाते हैं वक्ती तौर पर। बात यह है कि उनको फिक्रमंदी है न सिर्फ खुद की बल्कि अपने घर वालों की, अपने बच्चों की। जिस तरह से इस केस में बात सामने आ रही है कि अपने बच्चों को लेकर जो है उलझन से दो चार, क्योंकि ये मामला ये हो रहा है कि शहरियत की जब बात आ रही है तो न सिर्फ वो फर्द वाहिद जो परेशान है बल्कि वो असल में अपने सारे घर वालों के हवाले से परेशान है, क्योंकि सारे मामला तो उसी से जो है मैप होंगे, उसी से जो है जुड़ेंगे। अगर उसी का नहीं है तो फिर बच्चों का क्या होगा? ये एक आम जो है सोच है। नहीं है, अब मैं आपको अमली दुश्वारियां बता रहा हूँ। आपके पास भी फोन आ रहे होंगे, मेरे पास भी मुसलसिल हर दिन 10-15 फोन आते हैं कि साहब शौहर का नाम है 2002 की लिस्ट में, बीवी का नाम नहीं है। अब शौहर परेशान है बेचारा कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब वो बीवी के वालिद साहब दुनिया में नहीं है, गांव में थे वो, अब वो लिस्ट मिल रही नहीं उनको। या इसी तरीके से आप देखते हैं कि वालिदैन हैं, अब उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, बाहर है सऊदी अरब वगैरह में, अब उनका नाम कैसे मैपिंग करें। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी परेशान इस मामले में, सिर्फ गरीब ही नहीं है बल्कि बहुत से लोग परेशान हाल है, क्योंकि आप ऐसी इसके अंदर पेचीदगियां ला दिए हैं कि जिसके नतीजे में लोग समझ रहे कि भाई आखिर इसका हल क्या निकलेगा। जैसा कि नामों की स्पेलिंग की बात आ रही है, छोटे से नामों में अगर फर्क आ जा रहा तो आप जो है रिजेक्ट कर दे रहे इसको। और जैसा कि कहा यहाँ पर बाज़ाब्ता आपके जो इलेक्शन ऑफिसर ने कि भाई हम 88 लाख लोगों के नाम निकाल दिए हैं, तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे उनके जो नाम। अभी तो बताया जा रहा है कि भाई आप नहीं उनको नोटिस दी जाएगी, आप दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, आप ये जो टाइमिंग जो दिया गया है, पीरियड जो दिया गया है उस हवाले से। देखिए अभी तो कुछ नहीं हुआ तो एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, ये अब आप सोचिए कि नोटिस आएगी तो क्या हाल होगा लोगों का, हाँ। कितने परेशान हो जाएंगे। अच्छा नोटिस आने के बाद कौन सा ऐसा ईमानदार ऑफिसर है 1-2 चक्कर के बाद उनके मसले को हल करेगा? महीनों लग जाएंगे। आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल में क्या हुआ, जैसे ही 27 लाख लोगों के नाम निकाले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रिब्यूनल से रुजू हुए, ट्रिब्यूनल तो कायम हो गया, लेकिन लोगों का हाल क्या था, लोग डेरे डालकर खैमे डालकर वहां पर ठहरे रहे, अपने घरों को नहीं जा सके और सुबह से शाम तक क्यों लगी रही। इसके बावजूद आप जानते हैं कि 3 या 4 लाख लोगों के नाम आ सके इलेक्शन के अंदर, और बकिया लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप आइंदा इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। तब आप बताइए कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे तो 1 साल के अंदर भी हकीकी वोटर्स के नाम आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक नफ्सियाती खौफ आपने पैदा कर दिया है। और फिर जो ऑफिसर होगा पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो 25 सवाल आपसे करेगा कि भाई आप कहाँ पर थे, कब पैदा हुए, आप फलां चीज किए। तो ये सूरत हाल में हम समझते हैं कि इस तरीके को आसान किया जाए, आसान करना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा सा डॉक्टर साहब ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना में जो SIR का अमल चल रहा है इस हवाले से। बहरहाल पहला जो सेगमेंट ब्रेक से पहले का था वो बड़े अफसोस के साथ इसी में गुजरा कि क्या सूरत हाल हो गई कि इस अमल ने एक शख्स की मुबैना तौर पर यानी जान ले ली। ये बात सामने आ रही है, उसी पर डॉक्टर साहब जो है रोशनी डाल रहे थे। अब डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा, बहरहाल आपने जिस तरह से ब्रेक से पहले ये भी कहा कि इतना भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है
کہ آپ جو ہے اپنی جان کو جو ہے تلف کر لیں، یہ یقیناً جو ہے یہ نا امیدی کی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب اب ہم آگے بڑھتے ہیں، میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ابھی تک کا جو عمل ہے، فارمز گھروں تک پہنچنے کی بات ہے اور پھر اس کو فل کرنے کی بات ہے، اب تھوڑا سا آپ بتائیں مرحلہ وار کیا ہونا چاہیے، کیا کیا جا رہا ہے، اور جو کنفیوژن نظر آ رہے ہیں اب بھی اتنا شعور بیدار کرنے کے بعد بھی کیا کچھ ہو رہا ہے زمینی سطح پر؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے اس کے اندر میں جو عملی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 25 جون سے SIR کا عمل شروع ہو چکا ہے تلنگانہ کے اندر، اور جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ جس طریقے سے جنگی خطوط پر کام ہونا چاہیے تھا BLOs کی جانب سے، ایسا آپ کو کہیں پر بھی آبادی میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں خود بھی کئی جگہ پر دیکھا ہوں، وزٹ کرا ہوں باضابطہ، تو کہیں پر بھی بہت 2-4 جگہ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جن لوگوں کو ذمہ داری دی ہے، جو BLOs ہیں، وہ BLOs کا ان کی اپنی تعلیمی قابلیت کیا ہے، وہ خود کتنا SIR کے اس مہم کو سمجھے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھے تو لازمی چیز ہے کہ پورا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ BLAs جو ہیں، اب یہ اطلاعات ہے کہ بہت سی سیاسی پارٹیوں نے BLAs متعین نہیں کیے ہیں۔ BLO الگ ہے، BLA الگ ہے۔ BLO جو ہے وہ تو سرکاری ہے وہ، اور اس کی معاونت کے لیے، اس کی مدد کے لیے ہم سیاسی پارٹیاں جو ہے نا اپنے جیسے نمائندوں کو رکھ رہے BLAs کے، لیکن بہت سی سیاسی پارٹیوں نے اس میں دلچسپی نہیں بتائی ہے۔ اب لازمی چیز ہے کہ یہ پورا اختیار BLO کو مل جائے گا اور وہ جو ہے سو آبادی میں جائے گا۔ اب جہاں جہاں BLOs جا رہے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ جہاں شہر حیدرآباد کی بات کریں ڈاکٹر صاحب، اور پھر دیگر اضلاع میں بھی کوشش تو کی جا رہی ہے مجلس کی جانب سے، نہ صرف ابھی بلکہ اگر ہم پری میپنگ کی بات کریں تو مکمل مزید مطلب شاید کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی کہ اتنا لوگوں کو اویئر کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا، باضابطہ طور پر ایپ جو ہے رضاکارانہ طور پر تیار کیا گیا، لوگوں کی پری میپنگ کی گئی تاکہ اس وقت میں ان کو موقع مل سکے کہ وہ پہلے ہی سے جو ہے ساری چیز کی تیاری کریں، یہاں تک کہ جو ہے آپ کو جس طرح سے جو فارم ہے فل اپ جس طرح سے کرنا ہے وہ ساری چیزیں دی گئی، یعنی پوری پریکٹس کروا دی گئی۔ اب بھی لوگ سمجھنا چاہیے، اگر نہیں دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اور خاص طور پر بیرسٹر عزیز النبوی صاحب کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ کسی سیاسی پارٹی نے SIR کے عمل کو سمجھا اور اس کو عملی طور پر عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ہر اسمبلی بوتھ نہیں بلکہ لوکل سطح پر بھی انہوں نے باضابطہ اپنے ڈیسک سینٹرز قائم کیے، ہیلپ سینٹرز قائم کیے، اور لوگ اس سے رجوع ہوئے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ گئے وہاں پر۔ میں ان کی بات نہیں، جو لوگ نہیں گئے ہیں، آج بھی غفلت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ پوچھیے کئی لوگوں سے، وہ سیدھا سادہ جواب دے کہ نہیں بھی نہیں معلوم ہم کو کیا چیز ہے، اور یہ مطمئن ہے کہ جیسا کہ بہت بڑا آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا، لوگوں نے کہا کہ پری میپنگ کر لی ہم، اب یہ سمجھ کہ پری میپنگ ختم ہو گیا، اب کوئی کام ہم کو کرنا نہیں ہے۔ اب جب بات آئی سامنے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، تو اب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ سامنے BLA خود آئے گا، BLO آئے گا، وہ ایک فارم دے گا، ایکچوئل میپنگ ہوگی۔ اب میں وضاح سے آپ سے ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کا جو فارم ہے وہ آپ اپنے پاس رکھنا ہے آپ کو، اصل میں BLO جو فارم لائے گا وہ آپ کو دے گا باضابطہ، اور وہ فارم کو آپ پڑھے لکھے، اور وہ واپس نہیں لے گا جبھی فوری طور پر، بلکہ وہ وقفہ دے گا، 4 دن کے بعد آئے گا، 8 دن کے بعد آئے گا۔ تو اب بتائیے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے۔ کئی پڑھے لکھے لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم نے وہ فارم فل اپ کر دیا اور ہم دے چکے ہیں، اور باضابطہ فون میں بتا رہے کہ نہیں صاحب وہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے، تو وہ جو کچھ بھی آئے وہ پری میپنگ کے لیے آئے تھے آپ کے پاس، اور انہوں نے میپنگ کر دی آپ کے ووٹر لسٹ کے ذریعے، ایک مشق دیکھنا تھا آپ کا، 2002 میں نام ہے، ساری چیزیں کروائی۔ تو میرا ماننا ہے کہ مجلس کی جانب سے اتنی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی میرے خیال 40-50% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی پری میپنگ ہو گئی، اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا ضروری ہے، ان کو بتانا ضروری ہے۔ اب اگر آپ ملیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، تو لازمی چیز کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ کی۔ تو میرا کہنا ہے کہ ابھی بھی مجلس کے جو بھی کونسلر سے سابقہ کونسلر ابتدائی صدور وغیرہ ہے، یہ لوگ تو رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن ایسے بھی تو علاقے ہیں جہاں پر مجلس کے زیادہ جو ہے نا لوگ نہیں ہیں وہاں پر، تو ایسے جگہ پر آپ کیسے کریں گے؟ جیسا بورا بنڈے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ بورا بنڈے کا واقعہ کیوں ہوا؟ لازمی چیز ہے کہ وہاں پر لوگوں کو شعور نہیں بیدار کیا گیا، لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ بھائی یہ معاملہ ہے آپ کا، اور آپ کو یہ سرٹیفکیٹس آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے ان کی رہنمائی کی جا سکتی تھی۔ تو ایک واقعہ تو آپ کے سامنے آیا ہے، لیکن ایسی کئی آبادیاں ہمارے پاس، اور لوگ پریشان حال ہیں اور نہیں معلوم کہ کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھا کچھ تو اتنے دل برداشتہ ہیں جو اپنی جان کے جو ہے لے رہے ہیں اور یا اس کی طرف آمادہ ہیں، کچھ تو وہ ہیں کہ بالکل ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ بالکل
बिल्कुल कोई शौर नहीं है, इवन वो प्री मैपिंग से भी वाकिफ नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे खानदान हैं, बिलखुसूस जो माइग्रेंट्स हैं। नहीं देखिए, माइग्रेंट होने दीजिए या कहीं का भी होने दीजिए, ये तो मामला सबके लिए है जी। और माइग्रेंट के लिए तो और ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि उनको तो लाजमी चीज़ें जहाँ जिस रियासत से उनका ताल्लुक़ है वहाँ से उनको सबूत लाना पड़ेगा और पेश करना पड़ेगा, और अगर वो बेफिक्री में ज़िंदगी बसर करें तो लाजमी चीज़ है कि उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आप देख लिए दीगर रियासतों के अंदर, खासतौर वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि शहरियत तो छोड़िए, आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में, आसाम में ऐलान कर दिया गया कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं अब हम उनको कोई सरकारी फवायद नहीं देंगे, किसी भी किस्म की सरकारी स्कीम में उनका हिस्सा नहीं होगा। अब आप बताइए, ना आपको राशन मिल सकेगा, ना आपको जो बैंक से लोन मिल सकेगा, ना कोई और चीज़ मिल सकेगी। तो ये तो लाजमी चीज़ है कि जो लोग इस किस्म का रवैया अख्तियार किए हुए हैं वो जो है ना उनकी गफलत है और गफलत की उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मेरा कहना है कि जो गरीब तबका है, जो नाखानदा तबका है, उनकी रहनुमाई करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पढ़े लिखे जो नौजवान हैं और जिनके पास टाइम है, वक्त है, वो जाए घर घर और देखें कि साहब किसका क्या मामला है। अब देखिए चंद लोग हैं, भाई मेरा हो गया है, मेरे ख़ानदान का होगा, मैं मुतमईन होकर बैठ गया हूँ। नहीं, आपकी एक अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप महल्ले वालों से पूछे कि भाई आपका कितना काम हुआ है, आप जो है आपके पास दस्तावेज है या नहीं है। तो ये अखलाकी जिम्मेदारी को हम समझने की कोशिश करें, जिसको आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। एक फर्द होने के नाते, एक शहरी होने के नाते एक समाजी जिम्मेदारी भी आपकी है, उस समाजी जिम्मेदारी को पूरा करने की आप कोशिश करें। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि BLO आएगा, आपको फॉर्म देगा, आप फॉर्म पढ़िए, बाज़ाब्ता फॉर्म 2 देंगे। दो फॉर्म देंगे आपको। बात कर लेंगे डॉक्टर साहब के क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कौन सी तारीख से क्या मतलब डेडलाइन है, सारी चीजें मैं चाहूंगा कि 2 फॉर्म दिए जाएंगे। 2 फॉर्म दिए जाएंगे जी, और देकर वो चले जाएगा, लिंगा फॉर्म आपसे वापस। आप इत्मीनान से बैठे, उसके अंदर 3 कॉलम है। पहला कॉलम आपका ये है कि 2002 की लिस्ट से आपको वो करने का है, उसका जो एपिक नंबर है वगैरह वगैरह, असेंबली हल्का जो है वो लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट आपका क्या है, क्योंकि हल्के बदल गए। प्रेजेंट तो जो है जैसे वोटर आईडी पर जो आपकी डिटेल है वो प्रेजेंट प्रिंटेड आ जाएगी, प्रिंटेड आ जाएगी। हाँ। दूसरा जो खाना होगा उसमें आपको 2002 के हवाले से, चाहे वो आपकी अगर डिटेल हो तो उसमें आपको लिखना होगा एज इट इज, या फिर आपने किसी से मैप करवाया है तो उनकी जो है डिटेल जितनी भी जैसी होगी वो सारी की सारी वैसी ही आपको जो है उसमें एंट्री करनी होगी। और सबसे आसान अमल यह है कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे जी, एपिक नंबर डालते ही सारी तफसीलात आ जा रही उसके अंदर, आपका नाम भी आ जा रहा, आपका हल्का भी आ जा रहा, आपका मकान नंबर भी आ जा रहा। तो बड़ी आसानी के साथ ये काम कर, मैं समझता हूँ कि इसको आप ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं फिलअप करते वक्त, फॉर्म को फिलअप करते हो। एक तरीका तो आपको मालूम है कि ऑनलाइन भी आप फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। मैनुअल की बात ज्यादातर लोग मैनुअल ही करने को तरजीह नहीं, मैनुअल करना इस बात से अच्छा है कि अगर आप ऑनलाइन भी कर दिए तो उसकी रिसिप्ट BLO को बताना है, ये जरूरी है, क्योंकि वो तो अपना वही फॉर्म देके जाएगा, 2 फॉर्म फिर आपको फिलअप करना है। तो बेहतर ये है कि मैनुअली करें और BLO के निगरानी में काम हो। वो आएगा, देगा आपको, उसके बाद 8 दिन के बाद वापस आएगा, आप उसको फोटो लगाना है, वो सारी तफसीलात लिखकर उसको दे देने का है। और देने के बाद क्या है, उसमें आपकी दस्तखत है बाज़ाब्ता, आपको सिग्नेचर करना है। अच्छा, आपका बच्चा घर में नहीं है, आपके भाई घर में नहीं है, आप खुद भी सिग्नेचर कर सकते हैं जी, किसी और की तरफ से भी। उसके अंदर बाज़ाब्ता नीचे उसका वो है आपका एफिडेविट कि यानी आप ये करें कि साहब बता दें क्या रिश्ता है, बता दें, आप जिम्मेदार है, बता दें उसके अंदर, साइन करके दे दे। तो ये ले लेना है आपको। अब आगे इस अंदर अफराद खानदान घर में रहना जरूरी नहीं है कि सब सारे कारोबार छोड़ के लोग घर में बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो जो अमल होगा 24 जुलाई तक, आप कोशिश करें कि भाई आज आपके जहाँ 28 जुलाई है, 29 जुलाई को अगर आ गया BLO आपके पास, जून हाँ 29 जून है, कल 28 है, कल 29 जून को अगर आ गया BLO आपके पास, तो 4 दिन के बाद उसको फोन कीजिए आप कि साहब आप मेरा फॉर्म मुझे दे के गए हैं, अब वापस लेना है आपको फॉर्म, आप कब लाएंगे, आप कब आएंगे, समझे ना। आप तो इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि आप 24 जुलाई तक इंतजार करते बैठेंगे और खुदा ना खासा वो नहीं आएगा, ये भी हो सकता नहीं आएगा, क्योंकि बहुत गैर जिम्मेदारी से काम हो रहा। देखिए, सब मीडिया में बातें बड़ी की जा रही है ऑफिसरों की जानिब से, लेकिन ग्राउंड पर काम जो है बहुत कम है, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि BLO के अंदर बुनियादी सहूलत नहीं है उनको, समझे ना आप। अब उसमें बाद अब इलेक्शन कमीशन एक भी आएगी, भाई सुबह के औकात में काम करेंगे, शाम के औकात में करेंगे, कोई टाइमिंग मुकर्रर नहीं कर रहा BLOs के लिए। तो ये सारे मसाइल हैं। तो मैं हम लोगों से कहूँगा कि जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो खुद कॉल करें बाज़ाब्ता। अच्छा, इत्तेफाक से अगर 2-3 दिन में नहीं आएगा कोई BLO, बाज़ाब्ता उसका नाम भी है, उसका फ़ोन नंबर भी आपके पास, आप खुद जो है ना उसको ये करें, बाज़ाब्ता फ़ोन करें, मालूमात लें, या फिर आपके करीबी ऑफिस में चल जाए बल्दिया के, तो आपको मालूम हो जाएगा कौन आपका BLO है, या फिर आबादी में निकल कर देखे, कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएगा। तो ये काम होगा और 24 जुलाई तक ये अमल जारी रहेगा।
24 जुलाई के बाद आप जानते हैं कि 31 जुलाई या 1 अगस्त को आपकी ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। यानी 24 जुलाई के बाद आप ये फॉर्म दाखिल नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जी। और दाखिल फॉर्म किसको देना है? 24 जुलाई डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि 24 जुलाई का आप इंतजार ना करें, बल्कि अभी अगर आपको फॉर्म मिलता है फॉर्म ले लें और इत्मीनान के साथ, मतलब ऐसी जल्दबाजी भी ना करें कि कोई गलतियां कर दें, इत्मीनान के साथ जितना वक्त लग सकता है वो सारी 2-4 दिन के अंदर आप फिलअप कर दें, उसकी तस्दीक कर लें, और हो सके तो क्योंकि वो दूसरे मतलब एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं मिल रहे हैं तो आप उन फॉर्म्स को, 2 फॉर्म जो मिल रहे हैं उसको जो है पहले उसकी फोटोकॉपी कर लें, यानी जेरोक्स कर लें, और फिर इसके बाद उसमें पहले लिख लें, उसके बाद फिर जो असल फॉर्म है उसको पुर करें ताकि कोई गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, और आप शफाफ तरीके से, साफ तरीके से, अच्छी तरह से जहां जो चीज़ लिखना है, अगर आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है तो जिससे मशवरा ले सकते हैं, BLAs हैं और मजलिस के जो यानी जो माविनीन है मैं कहूँगा, उनसे जो है आप रब्ता करते हुए आप सारी चीज़ें मुकम्मल करें। जहाँ पर जो एंट्री है उसको वहाँ पर एंट्री करें। जो दस्तावेजात तो बहरहाल अभी तो नहीं है डॉक्टर साहब, फिलहाल तो खानापुरी ये भी वजाहत कर दो मैं कि BLO जो आएगा तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है आपको। हाँ। और वो उसके अंदर आप जो फॉर्म में लिख देंगे वही असल आपका रहेगा। हाँ, अब बता कोई जैसे पुराने 2002 की अगर एपिक नंबर है या कुछ चीजें जरूरी हैं तो लिख सकते हैं, तो लिखें, फॉर्म में लिखें वो। हाँ, देखिए फॉर्म में वो सारी चीज तफसीलात में, एक्स्ट्रा कोई पेपर आपको देने का नहीं है। हाँ। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कोई चीज देने की, जब वो दोबारा आएगा, हाँ। जब दोबारा आएगा तो वो पूछेगा आपसे कि भाई आपका अगर 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या डॉक्यूमेंट लगाना है उसके लिए, और वो भी आपका मान लें 1 ऑफ द डॉक्यूमेंट है। 11 डॉक्यूमेंट है, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं कि उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है, SSC का सर्टिफिकेट है, बैंक का पासबुक है, पासपोर्ट को उन्होंने वैलिड कर दिया। ये वजाहत जरूरी है कि आप देखते हैं कि एक तो ऐलान जो आ गया है वजारत खारजा की जानिब से कि भाई पासपोर्ट शहरियत का सबूत नहीं है, लेकिन SIR के लिए काबिल कबूल है। SIR की जो मुहिम चल रही है इसके अंदर वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करने के लिए आपका पासपोर्ट जो है ना एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रहेगा। इलेक्शन कमीशन उससे इनकार नहीं करेगा, ये बात आ चुकी है। आधार कार्ड के ताल्लुक से बात आ चुकी है। तो मेरा कहना यह है कि उस वक्त आप पेश करें, और अगर लिस्ट आ जाए आपके, जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उस वक्त का मरहला बड़ा है हमारा, वो ड्राफ्ट लिस्ट ये आपके 1 अगस्त को आ रही है जी, 1 अगस्त को। तो उस वक्त आप देखना पड़ेगा कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं है। उसके बाद फिर फाइनल होगी। ड्राफ्ट लिस्ट में अगर आ गया नाम आपका तो अब आप इत्मीनान से सो जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं है, खुद ब खुद नाम आपका आ जाएगा फाइनल लिस्ट में, और ये आपके अक्टूबर में होने वाला है। तो इस लिहाज से अगर खुदा ना खास्ता आपका नाम नहीं आया ड्राफ्ट लिस्ट में, तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आप जो सिग्नेचर करें और जो कॉपी उसने दी आपको BLO ने, उसको आप महफूज रखें और बतौर सबूत के पेश करें। कहें कि साहब मेरा तो, मैं तो लिखाया था पूरा नाम, इसके बाद मेरा नाम नहीं आया है। एक तो ये जुमरा है। दूसरा जुमरा वो है जिसकी हम बात करें, जिसके यानी फॉर्म में कुछ तजादात हैं जी, जिसको एनामेलिस कह रहे हैं जी, हाँ, जो तो ऐसे लोगों को नोटिस आएगी बाज़ाब्ता। हाँ। ये 30 अगस्त तक चलेगा, 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक इनको टाइम दिया जा रहा है कि साहब आपके ताल्लुक से ये डाउट है, आपके नाम में फर्क है, आपके पते में फर्क है, कुछ भी हो सकता है। आप उसको दुरुस्त करें, और वो दुरुस्त करने के लिए फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेश करना है, पेश किए जा ERO के पास। अच्छा, उसके अंदर अलबत्ता पैन कार्ड भी शायद पेश किया जा सकता है। उसके अंदर जो यानी आपकी शनाख्त के हवाले से, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, या जो भी उनको तजाद नजर आ रहा है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो कबूल किए जाएंगे, उसको जो है वेरीफाई किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा नहीं जी, इसमें देखिए आप मालूम होना चाहिए कि इसमें अभी तक तो मैं समझ रहा हूँ कि पैन कार्ड आया है, अभी तक पैन कार्ड को इन्होंने नहीं कबूल किया। अभी भी आधार कार्ड है, और इसी तरीके से पासपोर्ट भी है, और इसी तरीके से आपके बैंक का पासबुक है, और SSC का सर्टिफिकेट है। 13 डॉक्यूमेंट्स तो वो है डॉक्टर साहब जो 12 तौर पर 13 कहाँ से है? 12 ही है जी जी, 12 डॉक्यूमेंट्स ही है। उसके अंदर जो है ना आपको पेश करने का है सारी चीज़ें। तो उसको तो खैर आप अखबारात में देख सकते हैं और क्या क्या मौजूद है उसके अंदर, वो तफसीलात हमारे पास बार बार कई जगह से आ चुकी हैं, उस पर हम ज़्यादा गुफ्तगू ये कर सकते हैं। लेकिन 12 डॉक्यूमेंट में से आपको एक डॉक्यूमेंट आपको देने का है। ये 12 डॉक्यूमेंट्स तो वो हो गए जो मैपिंग के हवाले से, यानी कि आपकी ज़रूरत की तकमील होगी, कहीं पर 1 लगेगा डॉक्यूमेंट, कहीं पर 2 लगेंगे डॉक्यूमेंट जी। लेकिन इसके अलावा अगर एनामलीज का मामला है तो एनामलीज के लिए कुछ एक्सटेंशन है कि आप उसमें अपनी जैसे रिश्ता अगर आपको बताना है तो वो कोई और डॉक्यूमेंट भी जो इन 12 में नहीं है उनसे हटकर भी वो डॉक्यूमेंट्स का आप हवाला दे सकते हैं। अभी बहरहाल इस हवाले से जो है देखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से जो है शऊर बेदारी की जा रही है। आप मालूमात हासिल करें, और मालूमात हासिल करने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर मुंसलिक किए जा सकते हैं
اس کو جو ہے دیکھتے ہوئے پھر آپ ساری چیزیں یعنی خانہ پوری کریں، مطلب جلد بازی میں بھی عمل نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک چیز یہ ہے، سوال یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے ابھی انہوں نے نہ پری میپنگ میں حصہ لیا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ 2002 میں بھی ان کا نام ہے یا نہیں ہے، یا پھر ان کے جو جن سے وہ یعنی میپ کر سکتے ہیں جو 6 رشتے جو بتائے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے ابھی، تو ایسے لوگ ابھی میدان میں آئے، اب وہ لوگ کیا کریں یہ بتائیے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود واضح کر دیا ہے، یہاں کے ریاستی الیکشن کمشنر نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی کے نام میپنگ میں نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی واضح بات یہ ہے کہ 65% ہی آپ کے پاس پری میپنگ ہوئی ہے، جی ہاں، تو 35% تو باقی رہ گئے، بالکل ہاں، تو یہ 35% کہاں جائیں گے؟ اسی لیے آپ کو معلوم ہے بار بار الیکشن کمیشن نے کہا کہ صاحب اگر آپ کی میپنگ نہیں ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا، آپ کو اب اصل کام آپ کرنا ہے، آپ کو کہ بی ایل او جو آئے گا اور جو فارم آپ کو دے گا وہ فارم آپ فل اپ کر دیں، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ کوئی سرٹیفکیٹ آپ طلب نہیں کر رہا ہے، آپ دے دینا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب آئے گا تو آپ وہ خود اپنے جو ہے نا فون سے آپ کا جو سو آپ بتا دیجیے لسٹ میں آپ کا نام ہے، 2002 کی لسٹ میں اگر آپ کا نام ہے تو وہ خود بخود میپنگ ہو جائے گی وہاں پر، تو اس کے اندر کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور بھی چیز انہوں نے کہہ دی ہے کہ صاحب ایسے بچے جو ہے 18 سال کی عمر کو پہنچ چکے 2004 سے لے کر، ان کو اتنی رعایت دے دی گئی کہ اکتوبر 2026 تک اگر ان کی عمر 18 سال ہو رہی ہے تو ایسوں کے بھی فارم آپ ڈال سکتے ہیں باضابطہ، فارم 6 لے کر، ان کے لیے بھی یہ سہولت دے دی گئی۔ 21 اکتوبر 2026 تک 18 برس کی عمر کو پہنچنے والے نوجوان بھی ووٹر لسٹ میں اپنا نام داخل جو ابھی تک 18 برس کے ہو گئے جن کا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں بنایا گیا، اور ایون آنے والے دنوں میں یعنی اکتوبر کی کون سی تاریخ بتائیے آپ نے؟ 21 اکتوبر اگر وہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں ان کے بھی اور ان کے بھی آپ فارم 6 لے کر ان کے لیے بھی ایک معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر آگے ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے اس نام بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ایک دوپہر میں ہمارا جو پروگرام چلتا ہے آپ کے ساتھ، اس میں کال یہ آیا تھا اور کالر یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں یعنی وہ جب فارم لینے کے لیے بی ایل او سے ملے تو بی ایل او کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آپ کا نام اگر ووٹر آئی ڈی لسٹ میں ہے یعنی اب کی موجودہ تو آپ کو فارم ملے گا، ادروائز فارم آپ کو نہیں ملے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب نہیں، دیکھیے پہلی بات تو آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہاں پر ووٹر لسٹ میں رہنا نہیں رہنے کا سوال نہیں ہے، وہ ہر گھر کو جائے گا اور آپ کو فارم دے گا باضابطہ، اس کے بعد تو اسکروٹنی ہوگی، اس کے بعد تو جانچ ہوں گی۔ یہ اعتراضات کا جو پیریڈ رکھا گیا 31 جولائی سے لے کر 21 اگست تک، اس میں آپ کو پیش کرنا ہے ڈاکومنٹس، تو پہلے تو آپ کو فارم دے کے جا رہے، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، باضابطہ یہ کہا گیا کہ ہر گھر پہ جائیں گے لوگ، اور ایک مرتبہ نہیں جائیں گے بلکہ 2 مرتبہ جائیں گے، اور وہاں جا کر وہ اپنا جو ہے نا کسی بھی جو ہے سو پہنچائیں گے، اور ووٹروں کو 2 نقل پر مشتمل فارم باضابطہ فراہم کریں گے۔ اور یہ جو ہے نا اس میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا کہ صرف ان لوگوں کو دیے جائیں گے جن کے نام ووٹر لسٹ میں ہے، ووٹر لسٹ میں نام ہے ان کا، ان کو نہیں ہے، بلکہ سب کو یہ دیا جائے گا۔ دینے کے بعد جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جب آپ دوبارہ دے دیں گے واپس کریں گے تو وہ لے گا، لینے کے بعد اگر کوئی ڈاؤٹ آیا بی ایل او کو تو بی ایل او کیا کرے گا، ای آر او کو سبمٹ کر دے گا۔ اب ای آر او اس کی تحقیق کرے گا باضابطہ، اور تحقیق کرنے کے بعد آپ کو نوٹس دی جاری، اور وہ نوٹس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اعتراضات ہے اس کے اندر کہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کی معلومات غلط ہے، یا آپ نے غلط معلومات دی ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی کریکشن ہے، ناموں کا کریکشن ہے، میچ کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو 1 مہینہ کا ٹائم ہے باضابطہ، 30 اگست تک آپ جو ہے نا اپنا اعتراض داخل کر سکتے ہیں۔ اور جو حقیقی ووٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ جو اعتراض قبول کر لیا جائے گا تو لازمی چیز ہے کہ اس کا نام لسٹ میں آ جائے گا۔ تو وہ مرحلہ کب ہوگا؟ 31 جولائی کے بعد، کیونکہ 31 جولائی کے بعد ہی آپ کی ڈرافٹ لسٹ آنے والی ہے 31 جولائی کو، اور اس ڈرافٹ لسٹ میں آپ تلاش کرنا پڑے گا کہ آپ کا نام ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اعتراض داخل کرنے سے مراد ایک مطلب ایک دم عام اور سہل میں بات یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ اگر آپ کا کوئی نام میں جیسے فادر کا نام ہے، نیم ہے، اور آپ کا نیم ہے، اس میں کوئی اگر اسپیلنگ مسٹیکس وغیرہ آ رہی ہیں تو آپ نے جو لگا دیا تھا، اب اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ آپ کا فرق آ رہا ہے، آپ کے پاس کیا کوئی اور مطلب کوئی دستاویز ہے جس کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کریکشن ہے وہ دور ہو، تو وہ پھر آپ کو دستاویز پیش کرنا ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، سرکار کی جانب سے یعنی گورنمنٹ کی جانب سے جو جاری کیا گیا دستاویز ہے وہ جو ہے قابل قبول ہوگا۔ یہی بات ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت بی ایل او آئے گا
उस वक्त वो कोई दस्तावेजात तलब नहीं करेगा आपसे जी हाँ और वो अपना फॉर्म ले लेगा आपसे जी। फिर दोबारा आकर जी। और उसके बाद वो सबमिट कर देगा। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई फर्क महसूस हो रहा उसको जी। तो ऐसे अफराद को नोटिस दी जाएगी और नोटिस देने का जो दस्तावेजात आप कह रहे हैं वही दस्तावेजात पेश करना, एक्स्ट्रा नहीं है जी। इसके अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि भाई आप मुताल्लिका फर्द जो भी है उसको जो है ना अपना दस्तावेजात पेश करना होगा। इन दस्तावेजात में पैदाश का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या मैट्रिक या तालीमी असनाद, मुस्तकिल सुकूनत का सर्टिफिकेट, सरकारी मुलाजमत या पेंशन। ये भी बहुत अहम है कि जो सरकारी मुलाजिमीन उनको एक कार्ड दिया जाता है बाज़ाब्ता, ID कार्ड कि भाई ये मुलाजिम है फला महकमे के, वो भी काम आएगा आपको। पेंशनर्स है, चाहे वो खानगी पेंशनर्स हो हुकूमत की जानिब से जो गरीब तबका है या फिर आपके जो रिटायर्ड लोग हैं उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी कारआमद है आपके लिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर से आप बताना पड़ेगा कि भाई अगर वालिद का नाम में करेक्शन होना है तो आप बता सकते हैं कि भाई मेरे वालिद का सही नाम ये है, वोटर लिस्ट में गलत नाम आ गया। क्योंकि आप जानते हैं कि 2002 में जो वोटर लिस्ट तैयार हुई वो मैनुअल थी, हाथ से लिखी गई। अब आप देखिए कि कई गैर मुस्लिमों के नाम है, कोई मुसलमान राय शुमार आ रहा तो सही नहीं लिख सकता है वो नाम, और अगर मुसलमानों के भी कई नाम रहते हैं हमारे पास और वो गैर मुस्लिम अगर कोई रहा वो सही नहीं लिख सकता है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है नामों के अंदर। तो स्पेलिंग का फर्क होगा तो और इसके लिए भी तमानत दी गई है कि अगर ऐसी छोटे मोटे अगर कोई गलतियां होंगी तो उसको इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज करेगा। हमारे पास तेलंगाना की हद तक तो ये तमानत दी गई है, लेकिन बहुत बड़ा कोई फर्क आ जाए तो लाजमी चीज है उसके लिए वहां मसला है। अब ऐसे लोगों को ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाएगा। अब वो ट्रिब्यूनल में क्या होगा, वो तो सालों मामला चलेगा और यहाँ लिस्ट आ जाएगी। ये अमल तो आपका 30 अक्टूबर को खत्म हो जाने वाला है तेलंगाना के अंदर। आपको जो कुछ भी करना है आपका नाम आने के लिए 30 अक्टूबर तक आपका है। 30 अक्टूबर में अगर नाम नहीं आया आपका तो अब लाजमी चीज आप चक्कर मारना पड़ेगा। और फिर आखिरी चीज क्या है, आपको वजारत दाखिला तक भी आना पड़ेगा, क्योंकि वजारत दाखिला ही तय करती है कि आप हिंदुस्तान के शहरी है या नहीं है। तो उस मसले से बढ़ने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि साहब आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है इन 10-11 डॉक्यूमेंट्स में से। आपका नाम नहीं है कोई बात नहीं, आपके वालिद का नाम रहेगा। आपके वालिद का नाम नहीं है तो आपके दादा का नाम रहेगा, दादा का नाम नहीं है तो नाना का नाम रहेगा। ये भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मैपिंग के अंदर आपको नस्ली बुनियाद पर जाना है, जिसको प्रोजेनी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बीवी लिंक नहीं कर सकती शौहर के नाम से, उसको जो है ना अपने वालिद के पास जाना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपका लिंक हो जाएगा। अगर लिंक नहीं हो रहा अभी तो जैसा कहा गया कि कोई एक दस्तावेज आप पेश कर दे आपकी अपनी, अगर वो 1 जुलाई 1987 से लेकर आप कब तक 2 दिसंबर 2004 तक है आप, तो आपको अपना एक देना है सबूत, उसके साथ साथ अपने वालिद या वालदा का देना है। जी डॉक्टर साहब, एनामलिस जो आ रहा है आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC और PSU इंक्लूडिंग ओल्डर रिकॉर्ड्स वेयर एप्लीकेबल। तो इसका थोड़ा सा इहाता जो है वसी किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसके तहत यानी ये जो 12 जो दस्तावेजात बताए जा रहे हैं ना, इसी में ये जो दिया गया है इसके तहत जो है दीगर दस्तावेजात भी एनोमलीज के लिए वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, याद रख लीजिए। हाँ, सपोर्टिंग। जैसा अभी पासपोर्ट के वास्ते क्या कहा उन्होंने, देखिए पासपोर्ट के ताल्लुक से जो वजाहत आई है महकमा खारिजा की जानिब से, उन्होंने कहा कि पासपोर्ट आपको इशू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, लाइक आपके पैन कार्ड, समझे ना, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट। उन्होंने वजाहत की बाज़ाब्ता कि ये बुनियाद पर हम आप किसी शख्स को पासपोर्ट दे रहे, हम ये नहीं कह के दे रहे कि आप हिंदुस्तान के शहरी है, बल्कि आपको जो पासपोर्ट दिया जा रहा है हिंदुस्तानी शहरी इसके जो है नहीं ले सकते। अब देखिए इस मामले में तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब ने बड़ा अच्छा यानी तबसरा कर दिया है कि हो सकता है कि 2030 तक आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी, आपको राशन कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी, आप सिर्फ बीजेपी का कार्ड रख लें अपने पास तो आपकी शहरियत तस्लीम कर ली जाएगी। उनका ये बयान आया है बाज़ाब्ता। तो खैर हम वो सियासी गुफ्तगू तो यह नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पासपोर्ट के मामले में जो बातें कही जा रही है कि जबकि आप उस पर स्टैम्प मारते हैं बाज़ाब्ता रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, उसके अंदर आप लिखते हैं कि इंडियन सिटीजन, पासपोर्ट एक्ट के अंदर खुद मौजूद है कि पासपोर्ट विल बी इशूड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो हिंदुस्तान का शहरी उसी को पासपोर्ट दिया जाता है। आप बांग्लादेश वाले को पासपोर्ट नहीं देते हिंदुस्तान का, पाकिस्तान को या फिर अमेरिका वाले को नहीं देते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इसको उलझा दिया गया है। अब सवाल यह है कि SIR के ऐसे नाजुक मरहले पर इस मसले को क्यों छेड़ा गया है। देखिए आधार को भी इसी वक्त छेड़ा गया,
अब तक हम ये समझते रहते थे कि साहब आधार सबसे बेहतरीन मुस्तनद डॉक्यूमेंट है हमारे पास, यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी उसका नाम ही रखा गया, रुपए जिस पर खर्च किए गए और आवाम को परेशान क्या गया उस वक्त भी, उस वक्त भी बेचारे गरीब लोग मालूमात नहीं रखने वाले हजारों रुपए खर्च किए हैं आधार कार्ड बनाने के लिए। तो ये जो हवा खड़ा किया जाता है हुकूमत की जानिब से कोई एक डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, बनाने के लिए, और उसके बाद आप उसकी हिफाजत को खत्म कर देते हैं। तो अब आप देखिए कि पासपोर्ट के मामले वही हो रहा है। तो हमारा कहना यह है कि भाई इस वक्त ये क्यों इशू आया है, आधार का मामला जब तक कि हम इत्मीनान में थे, जब बिहार में शुरू हुआ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधार कार्ड हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने दो मरतबा सजनिश की, आपको मालूम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक वैलिड डॉक्यूमेंट आप इसको कबूल कीजिए, लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ, और उसके बाद बड़ी मजबूरी से उन्होंने कहा कि ठीक है हम वक्ती तौर पर उसको कबूल करते हैं, लेकिन अभी भी उसका इलेक्शन का मौक़िफ़ यही है कि वो आधार जो है ना शरीयत का सबूत नहीं है। सर 2 मिनट है, आप यानी बहुत जल्दी खत्म होगा। आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे, तेलंगाना और हैदराबाद, शहर हैदराबाद के लोगों से? बिल्कुल 2 मिनट है। देखिए मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि लोग ये समझ रहे हैं कि भाई 25 जून अब अमल शुरू हो चुका है, अब हमको खामोश बैठ जाना है। मैंने इससे पहले के प्रोग्राम में कहा, अभी भी कहना चाह रहा हूँ कि जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से, जो रज़ाकाराना तंजीमें हैं, शऊर बेदारी का काम मुसलसिल करे, वो मुसलसिल जो है ना कैंप लगाएं बाज़ाब्ता, और ऐसी आबादी में जाए जहाँ पर लोग जो है ना वाकिफ़ नहीं है सैयार से, परेशान हाल है, उनकी मदद कीजिए। देखिए ये मौका लोगों की मदद करने का है, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो लाजमी चीज़ें को बेचारे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इस मामले में मैं ये चाहूँगा कि भाई आप मस्जिदों के मेंबर से भी, दीनी जमात के ज़िम्मेदार अपने इज्तिमात के ज़रिए भी, और उलमा इकराम, दानिश्वर, कलमकार, सब लोग अगर अवामी शऊर को बेदार करेंगे तो हकीकी वोटर्स के नाम आपके वोटर लिस्ट में आ सकेंगे, और अगर नहीं आ सकेंगे तो लाजमी चीज़ है कि इसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। अब ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि साहब इसका निशाना कौन है, कौन इसका टारगेट बनने वाले हैं, और उसके बाद की सूरत हाल क्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो है ना एक वाक़या, अलमनाक वाक़या हो चुका है। तो हम इस वक्त मायूसी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप चौकस हो जाइए, होशियार हो जाइए, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कीजिए, पहले अपना नाम फेरिस्त में लाने की कोशिश कीजिए, अपने अफराद ख़ानदान का नाम लाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसमें परेशान मत होइए, कोई इंतहाई इक़दाम मत कीजिए, क्योंकि ख़ुदकशी किसी भी मसले का हल नहीं है, याद रख लीजिए। दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है, खुदकशी कोई मसला का हल नहीं होती है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना इधर उधर जाकर एजेंट्स को हज़ारों लाखों रुपए देने की ज़रूरत है। बल्कि आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आपके सदर साहब और उनके MLAs और काउंसलर ये सब लोग रहनुमाई कर रहे हैं, इनके अलावा भी दीगर जमातें भी काम कर रही है। लिहाजा इनसे आप रुजू होइए और किसी भी तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में लाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, बहरहाल इसी डॉक्टर साहब ने जो बात वाज़ेह तौर पर रखी है, इसी को मद्देनज़र रखें, और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना लापरवाह, बिल्कुल बेफिक्र हो जाने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दें, बाद अल्लाह पर छोड़ें, और यानी मायूसी भी जो है क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल ना करें, ना लापरवाह बने, ना जो है बिल्कुल खौफज़दा हो जाए, बल्कि जो दरमियानी रास्ता होता है पूरी कोशिश करें, उसके बाद अल्लाह पर छोड़ें। उसके बाद जो सूरत हाल जो भी होगी उसके लिए जो है भाई आप जो है हर तरह की सूरत हाल से जो है निपटने के लिए, क्योंकि आप सच हैं, आप अगर हक पर हैं तो फिर आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। ये हालात आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।